حسین علیہ السلام انا قبیل القبر شرف اللهم صل على محمد وآل محمد. یقیناً آج کی شب بہت ہی غمگین شب ہے. یہ شب رونے والی شب ہے، آنسو بہانے والی شب ہے. اور آج کی شب خون کا آنسو اگر بہایا جائے تو وہ بھی کم ہے، کیونکہ مولا حسین خود یہ فرماتے ہیں انا قتیل القبر، مجھے رولا رولا کے قتل کیا گیا، مجھے رولا رولا کے قتل کیا گیا. کیا دوسری توجیہ اس جملے کی علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا کا شاید کہنے کا یہ مطلب رہا ہو کہ انا قتیل القبر، مجھے رولا رولا کے قتل کیا گیا، یا یہ مطلب رہا ہو کہ میں ایسا قتیل ہوں کہ دشمن بھی مجھے قتل کر رہا تھا تو وہ بھی رو رہا تھا. یہ کہ اس کی توجیہ علماء فرما رہے ہیں. یا ایک وجہ اور بھی علماء اس جملے کی فرماتے ہیں کہ مولا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایسا قتیل ہوں، ایسا قتل ہونے والا ہوں کہ میرے قتل ہونے سے پہلے ہی تمام انبیاء نے میرے اوپر آنسو بہایا. خاص طور سے رسول خدا میرے اوپر میرے قتل سے پہلے روئے، علی مرتضیٰ میرے قتل سے پہلے روئے، فاطمہ زہرا میری قتل سے پہلے روئی، حسن میری قتل سے پہلے روئے. گویا وہ ایسے رو رہے تھے پنجتن پاک جیسے میں انہی کے سامنے ذبح کیا جا رہا. ایسے حسین قتیل پہ اگر کوئی نہ روئے تو پھر کب رویا جائے گا؟ ایسی شبوں میں اگر ان کے اوپر آنسو نہ بہایا جائے تو پھر کب آنسو بہایا جائے گا؟ ہاں یہ وہ شب ہے، اسی شب کے لیے حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی. ایک رات میں بھی جو حسین کو مہلت ملی ہے تو کیسے جب حسین کو مہلت ملی ہے عبادت میں شب گزار رہے ہیں، لیکن جناب زینب سید سجاد سے پوچھتی ہے اے بیٹا سید سجاد ذرا یہ تو بتاؤ میں یہ کسی بیوی کے رونے کی آواز کیسی سن رہی ہوں؟ بار بار خیمے کے پیچھے سے کسی ایک بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور ایسی آواز آ رہی ہے جیسے لگتا ہے ابھی ابھی اس کا جوان بیٹا مارا گیا. یہ آج کے شب کی رات ایسی رات ہے. سید سجاد سے پوچھا جب زینب نے تو سید سجاد کہتے ہیں اے پھوپھی اماں آپ نے اس رونے والی کی آواز نہیں پہنچانی. ارے وہ ہماری دادی فاطمہ زہرا ہے سرزمین کربلا ماں. ارے ان رونے سیدانیوں پہ آنسو بہا رہی ہے، اور کہاں کہاں آنسو بہائے اے زینب ہماری دادی کبھی اس جگہ جاتی ہے جہاں حسین کے انصار مارے گئے وہاں بیٹھ کے روتی ہے، تو کبھی اس جگہ رونے کے لیے پہنچ جاتی ہے جہاں صبح صبح کچھ دیر کے بعد علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی. کہاں کہاں روئے میری دادی. اے زینب زمین کربلا کی ہر اس جگہ پہ جا رہی ہے جہاں جہاں کوئی شہید ہونے والا ہے. آئے اصغر کا لاشا جہاں حسین لیے ہوئے آگے اور پیچھے کر رہے تھے وہاں بھی آنسو بہا رہی ہے. اور سب سے آخر میں اے زینب ذرا جا کے دیکھو تمہاری اماں اپنے بالوں سے اس نشین کی جگہ کو صاف کر رہی ہے جہاں تیرا ماں جایا.
ज़बह किया जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गज़ब की रात है, रोने की रात है। शहजादी कौनैन आंसू बहा रही है, सैदानियाँ आंसू बहा रहे हैं। और यही नहीं कि जयपुर के लोग रोने के लिए और जगदलपुर के लोग भी रोने के लिए आ गए। कसम खुदा की खुश नसीब है आप कि वहां से रोने के लिए आ गए, अपने घरों से रोने के लिए आ गए। और जो जहां से आया वो बड़ा खुश नसीब है कि आज की शब उसे मिली है और वो रो रहा है। अरे 1400 साल से इस रात और शहजादी कौन है जन्नतुल बकी छोड़ के अपनी टूटी हुई पसलियां लिए हुए हर आज़ा खाने में पहुंचती है। जैसे आप हर अज़ा खाने में होते हुए रोज़ाइन का मर्सिया रोते हुए पर्दे रात गुजार रहे हैं, ऐसे ही हुसैन की माँ हर अज़ा खाने में आती है। और जब अज़ा खाने में आती है तो तन्हा नहीं आती है, पूछती है। जब आना पूछती है तो कभी ज़ैनब पूछती है, अम्मा कहाँ का इरादा है? जयपुर में आज़ादारी हो रही है, फर्श अज़ा बिछी हुई है। कभी उम्मे कुलसूम पूछ देती है, माँ कहाँ का इरादा है? कभी रबाब पूछ देती है, कभी कोई पूछ देता है। लेकिन एक छोटी सी बच्ची है जिसे रोज़े आशूरा से लेकर आखिरी उम्र तक दिल भर के रोने नहीं दिया गया, वो पूछती है, दादी कहाँ का इरादा है? जब कहीं जाती है फातिमा तो एक छोटी सी बच्ची पूछती है, कहाँ का इरादा है? अरे जयपुर जा रही हूँ। तो एक मर्तबा तड़प के कहती है सकीना, ए दादी मुझे भी वहाँ पे ले चलो, जरा मैं भी देखूं। तसव्वुर कीजिए इस शहजादी के साथ जब सकीना आती होगी, हम और आप उसका एहसास नहीं कर सकते, लेकिन मेरा दिल कहता है किसी सैदानी के बिल्कुल करीब किसी गोशे में बैठ करके सकीना सब कुछ देख रही होती है कि कौन कौन मेरे बाबा पे रो रहा है, कौन कौन मेरे चचा पे आंसू बहा रहा है, कौन कौन मेरे भैया अली असगर का मातम कर रहा है। जरूर किसी सैदानी के पास बैठी हुई सकीना शहजादी इन मातमदारों को देख रही होगी। किसी को एहसास हो या न एहसास हो, रवायत कहती है कि हर जगह अपनी दादी के साथ पहुंचती है और जब इतने रोने वालों को देखती है तो तड़प के कहती है, हाय ये काश ये रोने वाले करबला में होते तो वो देखते अरे मेरे बाबा को कैसे रुला रुला के मारा गया, मेरे भैया अली असगर को कैसे शहीद किया गया, मेरे अली अकबर को कितना तड़पा तड़पा के मारा गया। काश ये रोने वाले करबला के मैदान में होते तो देखते हुसैन किस तरीके से अश्कया से मेरे भैया अली असगर के लिए पानी मांग रहे थे। तसव्वुर शर्त है, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे मजलूमे करबला के। यकीनन हक उसी पे है, उसी हुसैन पर रोया जाए। उस हुसैन, वो हुसैन जो जमीन करबला पे खड़ा हुआ है, बस आखिरी चीज जमीन करबला पे आखिरी वक्त खड़ा हुआ। और उसको तो पढ़ चुका हूँ, दूसरी चीज पढ़ दे रहा हूँ कि वहाँ अली अकबर अभी जिंदा है, मरने की तैयारी है, जा रहे हैं। एक मर्तबा अकबर ने कहा, बाबा हमें सोगरा की बड़ी याद आ रही है। इधर सोगरा भी तड़प तड़प के उम्मे सलमा से कहती हैं, नानी न जाने मेरा क्यों दिल बड़ा बेचैन है,
बड़ा दिल घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारे खानदान वाले कहीं मुसीबत में पड़ गए हैं। जैसे ये रात आई है और सोगरा की तरफ बढ़ गई और जा करके उम्मे सलमा से यही कहती है, नानी आपका दिल घबरा रहा है, मेरा तो दिल बिल्कुल तड़प रहा है, लग रहा है बाबा किसी मुसीबत में पड़ गए हैं, लग रहा है भैया अली असगर किसी मुसीबत में पड़ गया है, लग रहा है मेरा कड़ियल जवान मेरा भाई अली अकबर किसी परेशानी में मुब्तला हो गया है। इधर अली अकबर की तरफ के कहते हैं, बाबा मुझे सोगरा की बड़ी याद आ रही है, मैं सोगरा को देखना चाह रहा हूँ कि मरने से पहले एक बार सोगरा को देख लूं। हुसैन ने अपनी दोनों आंखियां बुलंद की, कहा अली अकबर इन दोनों उंगलियों के दरमियान से देखो तुम्हें सोगरा नजर आ जाएगी। अली अकबर ने उन दोनों उंगलियों के दरमियान झांकना शुरू किया, सारी जमीनें पस्त हो गई, मदीना की जमीन बुलंद हुई। अली अकबर ने देश रखना शुरू किया। हुसैन ने पूछा, बेटा अली अकबर कुछ दिखाई दिया? कहा हाँ मदीना नजर आया। कहा और कुछ? कहा मल्ले मल्ले बनी हाशिम नजर आया। कहा उसके आगे देखो कहीं सोगरा नजर आई। कहा हाँ बाबा वो घर तो नजर आया जहाँ हम रहते थे, लेकिन कहीं सोगरा नजर नहीं आई। कहा ढूंढ बेटा अली अकबर, सोगरा आया कहीं पे वहीं पे होगी, वहीं पे कहीं होगी। एक मर्तबा नजरे अली अकबर सोगरा को ढूंढ रही है, इस हुजरे में उस हुजरे में, लेकिन सोगरा कहीं नजर ना आई। ऐसी रवायत आपके गुज़ार करना चाहूंगा कि इंशाअल्लाह आप घर तक जा करके रोएंगे जब चारों तरफ अली अकबर की निगाहें देख रही थी, सोगरा नजर ना आई। बेटा क्या सोगरा नजर नहीं आ रही है? मुसल्ले में देखो, उस हुजरे में देखो जहाँ अली असगर लेटा रहता था वहां देखो, बेटा अली अकबर जहाँ तुम रहते थे वहां देखो। कहा नहीं कहीं नजर नहीं आ रही है। एक मर्तबा अली अकबर कहते हैं, बाबा एक वो जगह कुछ साया सा नजर आ रहा है। कहा बेटा कहा? कहा जब मैं मदीना से चला था तो सोगरा एक तश्त में मट्टी लेकर के आई थी। कहा था ए भैया अली अकबर तुझसे मुझे इतना इश्क और प्यार है, जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो अली अकबर के बिना अरे सोगरा जिंदा न रहेगी। तो उस तश्त की मट्टी को मेरे घोड़े के करीब रखा। कहे भैया अली अकबर इस मिट्टी पे अपना कदम रख के घोड़े पे बैठो ताकि तुम्हारा निशान कदम इस मिट्टी पे रह जाए। वही ताज नजर आ रहा है और सोगरा उसी मिट्टी पर अपना रुखसार रखे हुए कह रही है, ए भैया अली अकबर अपना वादा भूल गए, सोगरा को लेने लाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़ा में फरमाइए व तस्लीमन या लमुल तस्लीम खुदाया हक़ मोहम्मद व इन हज़रत